All right, so let's start the class for today. Okay. Uh, Hmm. So before starting the class, I would want to go through the homework that you must have done, I'm sure. Oh, great. You wrote a lot of sentences, and that's a very good thing. It shows that you are working on yourself. Okay. Seems like you have written a lot. Now, what I want to do is that I want you to not to read it out. I want you to introduce yourselves to me. You can take help of this, but it should not be like you are just reading it out. I okay. don't want you to read it out. Okay. I mean, you can आप एक नज़र ऐसे यूं घुमा के देख सकते हैं, बोल सकते हैं, बट ऐसे नहीं कि भाई मैं इसमें से ही बोल देख देख के बोल रहा हूँ, ठीक है? Yeah. All right. Go ahead. Okay. Myself, Kamran Akhtar. I am from Bihar. First, आपकी आवाज़ थोड़ी सी Okay. बढ़ाइए, Okay. वॉल्यूम बढ़ाइए. Myself, Kamran Akhtar. Good. I am from Bihar. Okay. I am 22 years old. Mhm. I am a student. Mhm. I have one brother, three sisters. My I have a passion for reading books. Very good. I love to read Quran and Hadith. I like little bit coffee and tea also. All right. Perfect. I love to play cricket. Mhm. I do not have too many friends. I have only two, three best friends. Okay. Yeah. Continue. I have listened. I have listened too many stories of my ancestors No. from my father and mother. Uh, Yeah. Continue. I love to eat pizza. Good. Very good. I have I have a mobile. Okay. I think this much is enough. Give me a moment. Let me close the door. Otherwise, horn की आवाजें आती रहेंगी. Okay. All right. Perfect. I only use these three words. I am, I have, and I like. Yes. Yes. This is what I have On the noticed. behalf of these three words, Yes. Yes. I Great. am saying you these Hmm. lines. You are telling me. You are I not am saying telling. me. You are telling Okay. me. I am telling. Okay. Now the thing is that it's a very good thing that you tried at home. You did your homework, and you not only did your homework, you have tried to implement what I taught you yesterday into uh, the structure that I have already taught you. Although you were still deviating a bit from it. I mean, अगर आपने notice किया हो लास्ट में थोड़ा बहुत आप इधर उधर जा रहे थे. फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि आई हैव हर्ड मैनी स्टोरीज अबाउट माई सिस्टर्स. लिखा भी है सर उसको। अच्छा, हाँ, तो वो मे बी आपने इसलिए बोल दिया होगा क्योंकि आपने ये लिखा है. अदरवाइज नॉर्मली ये जब भी इंट्रोडक्शन होता है, तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, थोड़ा सा शॉर्ट में फिनिश करने की कोशिश करते हैं, और कुछ स्पेसिफिक बुलेट पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम होते हुए जाते हैं और सामने वाले को बता देते हैं. अब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारे अंदर, या और भी कुछ जानना चाहता है वो, और जिसको कहते हैं ना गहराई से जानना चाहता है वो, तो वो खुद क्वेश्चन पूछ लेगा. वो पूछेगा तो देन अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर. ठीक है. And I would want you to continue in English. And can you tell me? I mean, you did specifically tell me that I have heard many things about my ancestors. So, I mean, what was that? I mean, is there something special, or what is it exactly? I would want to know about. like inspiration how to spend full life and
how to handle critical situations, and whatever whatever problems are comes in life, they always faced, Hmm. and they face and come out from these critical situations, and we learn from them too much. That's all. Okay, I understand what you were trying to say here. You were trying to tell me that your family have told you a lot of good stories and inspirational stories about your ancestors that that have helped you or that is helping you in your life right now. Yeah, good. Okay, that's a good thing. And I think every family must tell such stories to their children because it is very important, it is very inspiring, they get to know and understand how to lead their lives. एंड ये जो स्टोरीज होती हैं इनके थ्रू उनको समझ में आता है अच्छा ठीक है हमारी लाइफ में हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. नाउ आई हैव सम फीडबैक फॉर यू. There's a word HAVE. So how do you pronounce this have again? have Have. Okay. Now, because you know what I'm trying to do, that's why you are saying have. But when you were speaking, you again said have. Okay. Okay. So that is something. And how do you pronounce this? ONLY? Only. Only. No. You do not call it only. So what I call it? You you start with O, Oh, and then what is this N? N. So what is ON? On. ऑन हो गया, इसको अलग रख दिया. अब ये क्या बचा हमारे पास? L. Y. ये क्या होगा? Lie. Only. Lee. ली होगा. ठीक है. तो अब पहले क्या रखा था हमने? पहले बोलता था मैं only. नहीं, On. अभी हमने क्या रखा था? On. ऑन रखा था. और ये क्या है? L. Y. Lee. ली. अब इन दोनों को जोड़ दीजिए. Only. ओनली. Okay. ठीक है. अब तो आज से आप वनली नहीं बोलेंगे, ओनली बोलेंगे. Okay. ऑलराइट. इस चीज़ को आप लिख लीजिए कहीं पर, और किस तरह से बोलना है वो भी लिख लीजिए. एक सेकंड, पापा का कॉल आ रहा है. जी पापा, क्लास ले रहा हूँ. जी. ये 6 से 7 वाली. नहीं, वो फ्राइडेज में होती है, मैं अब बताऊंगा. ठीक. यस. ऑनली. ठीक है ना? हाँ ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए. आपको अपने लिए लिख रहे हो ना, बस आपको समझ में आना चाहिए, ये है मेन बात. ठीक है ना? इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है. ये ऐसा नहीं है कि आप में मैंने अलग चीज़ देखी हो, ये मैंने बहुत लोगों में चीज़ देखी है कि ओनली को वनली बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं. और सर मैं पहले बोलता था only, अच्छा. लेकिन टीचर्स को सुनते सुनते मैं भी only बोलने लगा. हाँ, वही प्रॉब्लम होती है ना, वो कई बार टीचर्स को ही नहीं पता होता, वो जैसे बोलते आ रहे हैं वैसे बोलते चले जाते हैं. एनीवेज, नो प्रॉब्लम. ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है. और इस चीज़ को जैसे कि मैंने बताया, अब मे भी आज भी कुछ ना कुछ होमवर्क दूंगा मैं. तो जैसे आपने आज करा था, जो कि अच्छी बात है कि जो मैंने आपको कल ही बताया था कि कुछ वर्ड्स आपको बताए थे, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है और उनको होमवर्क में भी इंक्लूड करना है. तो उसी तरह से इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और कुछ ना कुछ इसको कहीं ना कहीं होमवर्क में इंक्लूड कर देना आप, है ना? Okay. फिर क्योंकि आप फिर प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे करते करते हो जाएगा धीरे धीरे, है ना? ध्यान रखना. ओके, परफेक्ट. एक ये क्या चीज़ लिखी थी मैंने? Problems. हाँ, आपने बोला था प्रॉब्लम्स आर कम्स. Problems are क्या come. क्या ये सही सेंटेंस है? No. कैसे? Problems are come. ये odd लग रहा है थोड़ा. हाँ, और तो लग रहा है. देखिए, मुश्किलें आती हैं, इसका मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि Present मुश्किलें में आती बोल हैं, रहा हूँ. है ना? Past में उनके साथ हुआ था. हाँ, मतलब आप इस हिसाब से बात कर रहे हो कि वो उनकी जो कहानियाँ हैं, आपकी जो एंसेस्टर्स की कहानियाँ थी, उनको सुन के हमें इस बात की सीख मिली कि जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका कैसे सामना करते हैं. ये बात आप बोलना चाह रहे थे ना? जी. तो इसका मतलब जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आप बोलना चाह रहे थे, तो आर नहीं आएगा यहाँ पर. व्हेन
problems comes. when problems come. हम्म, Okay. ठीक है, कि जब मुश्किलें आती हैं देन उसके आगे जो भी आपका आंसर होगा वो इवन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आर यहाँ पर नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। Okay. ओके परफेक्ट, सो गुड, आपने अच्छा ट्राई किया। अब आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं विच इज़ योर डे 2। अच्छा, आज हमें ये पढ़ना है कि आपकी जो डेली लाइफ में आपका जो रूटीन होता है उसके बारे में किसी को कैसे बताना है, ठीक है। आपके रूटीन के बारे में किसी को कैसे बताना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और कोई भी कभी भी पूछ लेता है Okay. कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट योर रूटीन। तो फिर कई बार क्या होता है, इंसान थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू दिस फर्स्ट। एक तो आपका जो माइक है ना वो ऐसे जा रहा है और माइक अगर ऐसे जाएगा आपकी आवाज़ ऐसे आएगी तो वो कैच नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा ट्राई करें, अगर इसको ऐसे, जैसे इधर देखिए मैंने इसको थोड़ा घुमाकर ऐसे लगाया ना ताकि माइक, ये ऊपर माइक है, ये जो ऊपर वाली साइड है ना, आप इधर भी लगाओगे तो गिरेगा। Like that. बेटर, बट वो उधर जा रहा है ना। हाँ, ये जो आपने बटन लगा लिया इस पे लगा लो आप, क्योंकि ये तो इधर उधर जाएगा नहीं। हाँ हाँ, ऐसे करके, ऐसे करके, हाँ बेटर। अब सही है, इधर उधर नहीं जाएगा, अभी सीधा रहेगा, ठीक है। ओके परफेक्ट। सो सफाई वाले भैया अभी आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मना करना पड़ेगा। यस, सो लेट्स डू दिस। First of all, before going ahead with this, I would first want to see कि अभी आप किस तरह से बता पाएंगे, ओके। Okay. सो ऑल्दो आई नो अ बिट, क्योंकि उस दिन आप आए थे आपके भाई के साथ तो आपने मुझे सब कुछ बताया था, बट स्टिल कैन यू टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। Okay. First of all, I get गिव I मी सॉरी, गिव मी अ मिनट। कोई बात नहीं. भाई 8 बजे तक आए आप, 8 बजे तक, अभी क्लास चल रही है, ठीक है। क्लास चल रही है अभी, क्लास 8 बजे तक आए आप। हाँ क्लास चल रही है, 8 बजे तक आए, 8 बजे तक। Okay, sorry. Yeah, go ahead. First of all, I now I my daily routine now, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि अभी मतलब now I did not early get up in the morning. Early get up नहीं, get up early. Get up early. Hmm. Okay. I did not get up early. Okay. इसका मतलब क्या हुआ? मैं जल्दी सुबह नहीं उठ रहा हूँ. तो जैसे कि आपने डिड नॉट बोला ना, हाँ. डिड नॉट हो गया पास्ट, इसका अच्छा. मतलब ये निकल के आ रहा है कि मैं नहीं उठा था। आप मैं कहना चाह रहे हो कि मैं नहीं उठ पाता हूँ, मैं नहीं उठ पाता तो हूँ. या तो आप ये बोलिए कि आई एम नॉट एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I am not able to get up in the early morning. अर्ली इन द मॉर्निंग, Early in the morning. हाँ, कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। ये एक सिंपल सा तरीका है। क्या बोले? I do not able. आई एम नॉट, I am not able to गेट अप get up early इन द in मॉर्निंग। the morning. हर वर्ड का एक मतलब सेट हो रहा है ना, और जहाँ जहाँ मैंने रखा है वहीं वहीं अगर आप देखो रख के तो आपको भी सही लग रहा है ना। कि मैं शुरू से देखते हैं, आई एम I am नॉट एबल able टू, क्या क्या करने को to नॉट get एबल हो, up early in the गेट morning. अप, कब गेट अप, अर्ली Early इन द in the मॉर्निंग, morning. है ना। हर वर्ड के एक रीजन है कि वो वहां पर क्यों है। और उस जिसे कहते हैं ना हिंदी में संधि संधि विच्छेद, Sunday, sir. उस तरह से वर्ड्स को हम क्या क्या कहाँ पर क्यों है, उसका एक रीजन है, ठीक है। या ट्राई अगेन, गो अहेड। I am not able to get early in the morning. Get तो up early गेट in अप, the morning. सो के उठने को गेट अप बोलते हैं। Okay. After after fresh गेटिंग फ्रेश, after getting fresh, I do breakfast and uh, and go for some work of some works of my home, सम हाउस होल्ड वर्क, some household works, and then
at the time of Zohar, I will go to mosque and pray. And while coming from mosque, some uh, some household works finished while coming from mosque, and after coming home, and I I do lunch, right, and um, I have also some work for to go to school of my sister, and and basically I have no too much works at home right now Hmm. after the my NEET exam. Hmm. So I have I am totally like free. Hmm. So I am trying to set my daily routine. That's all. That's all. Yeah. नहीं नहीं ठीक है. You tried very good. It was very nice. So, okay, let's continue the discussion about your daily routine. Okay, because I would want to dive deep. You started with telling me that your days are not starting with Fajr for now. नहीं सर, फजर पढ़ के सोता हूँ. Oh, okay. That's a good. So, फजर पढ़ के सोता हूँ मतलब क्या आप रात भर जागते हो फिर नींद ही फजर नहीं के? आती है सर. ओहो, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है. गांव में था अभी 2 महीना पहले, वहाँ सो जाता था. हम्म. यहाँ रात में नींद ही नहीं आती है. ओके. एनी स्पेसिफिक रीजन? नहीं, वो सब इधर उधर कुछ नहीं है मेरे साथ. मैं फ्री सेल माइंड का फोन? हूँ. डू यू मोबाइल यूज थोड़ा सेल बहुत फोन? चला लेता हूँ. इधर उधर करवट इधर उधर करते करते नींद नहीं लगती है रात को. ओके. No worries. Although this is या a मैं spoken English class, but I would just want to tell one thing कि एक दिन आप ऐसा करना कि दिन में कितनी भी नींद आए, कैसे भी करे कहीं इधर उधर चले जाना, कॉफ़ी पी लेना, कुछ भी कर लेना, बट दिन में सोना ही नहीं है. ईशा से पहले सोना ही मत. ईशा पड़ी और बिस्तर पे चले गए. एक बार ऐसे ट्राई करना किसी एक दिन. उस दिन पॉसिबली आपको शायद थोड़ी जल्दी नींद आ जाएगी. फिर नेक्स्ट डे फिर एक चीज़ ट्राई करना. तो वो आपकी बॉडी को सिग्नल जब मिलेगा ना ये कि यार दिन में तो मुझे सोने को मिल ही नहीं पा रहा है, तो तब वो फिर रात का टाइम जब आप जैसे दोगे उसको वो यूटिलाइज करेगी कि यार जल्दी सो जाओ, क्योंकि बॉडी को सोने की ज़रूरत है और आप सो भी रहे हो. प्रॉब्लम बस ये है कि आप दिन में सो रहे हो. यही अगर वो प्रॉब्लम. आपकी स्लीप साइकिल आप दिन में पूरी कर लोगे तो फिर रात में क्या ज़रूरत है बॉडी की. एनीवेज, that's a different thing, but yeah, we'll come back to the topic. Okay, so yeah, now let me give you the structure now, because of course just like yesterday everything have a structure, and once you tell the things according to the structure, it makes more sense and it takes lesser mind. You do not have to keep thinking about that thing or at that time. Okay, perfect. So yeah, नाउ डेली रूटीन जो होता है वो हमेशा जब भी बताया जाता है तो वो किस फॉर्म में बताया जाता है ये हमें पता होना ज़रूरी है. ठीक है. जैसे कि भी आपने मुझे एक बात बताई थी, और उस पर मैंने आपको एक फीडबैक दिया था. उसमें आपने जैसे डिड का यूज़ करा था सेंटेंस में, जिसका मतलब ये निकलता है कि मैंने ये चीज़ करी थी, और फिर मैंने आपको फीडबैक ये दिया था कि आप उस वर्ड का यूज़ करो जिससे ये पता लगे, जिससे आप इस तरह से बोलो कि मैं ये करता हूँ, ना कि मैंने ये किया था. है ना. इसका मतलब ये जो करता हूँ वाली चीज़ होती है इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट में करता इसको हूँ. इसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस. ठीक है, ये चीज़ आप लिख लीजिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं इसको, और वो क्या होता है वो आप लिख लीजिए. और कभी भी अपना शेड्यूल बताएंगे आप, डेली रूटीन बताएंगे, कुछ भी बताएंगे, वो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बताएंगे. है ना. कि मैं ये करता हूँ, बस इसमें ये रहना चाहिए, ना ये कि मैंने ये किया, ना ये मैंने किया था, कुछ नहीं करता हूँ. ओके. सो उसके बारे में आप लिख भी लीजिए कि ये होता क्या है. व्हेन वी टॉक अबाउट
डेली लाइफ और हैबिट्स वी यूज सिंपल वर्ड्स लाइक आई वेक अप कि मैं उठता हूँ, आई ईट मैं खाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, आई स्टडी मैं पढ़ता हूँ। इस तरह से आप अपनी बात बोलते हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जी, कि मैं ये ऐसे ऐसे करता हूँ, है ना। इसमें आपने कुछ भी पास का यूज़ नहीं किया, आपने ये तो नहीं बोला कि आई वो, ना आपने ये बोला आई एट, है ना, कुछ भी पास का नहीं बोला ना। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं जब आपसे पूछे जाए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं एग्जांपल्स एंड देन वहाँ से एग्जांपल्स इसी चीज़ का एग्जांपल्स। इसी का। हाँ, आई वेक अप एट 7 AM, या जितने बजे आप उठते हैं वो। आई ब्रश माई टीथ, आई टेक अ शावर, आई टेक अ शावर, आई ईट ब्रेकफास्ट, आई गो टू कॉलेज, आई स्टडी इन द इवनिंग, आई स्लीप एट 11 PM, आई स्लिप एट 11 PM। ठीक है, अब मुझे आप एक बार इन सेंटेंसेस को पढ़ पढ़ के सुनाइए। आई वेक अप एट 7 AM। आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई, टीथ ई कितने हैं यहाँ पर, दो। तो फिर खींचेगा ना। टीथ यस, टीथ। ओके। आई टेक अ शावर। आई ईट ब्रेकफास्ट। आई गो टू कॉलेज। आई स्टडी इन द इवनिंग। आई स्लीप एट 11 PM। ओके, ये STUDY जो वर्ड है इसको कैसे बोलेंगे। स्टडी। इसमें कोशिश ये करेंगे जो फर्स्ट जो S है वो से स्टार्ट हो, इस से स्टार्ट ना हो। स्टडी। अभी भी आपने स्टडी बोला है। स्टडी। हाँ, स्टडी बोला है ना, स्टडी तो इस नहीं आना चाहिए ना। क्या स्टडी बोला है? स्टडी। स्टडी हाँ, आधा सौ वाला। बस आधा सा वाला। फिर से बोलेंगे ये वाला, स्टडी। शुरू से यहाँ से। आई स्टडी इन द इवनिंग। करेक्ट, एंड देन आई स्लीप एट 11 PM। ई कितने हैं, स्लीप। स्लीप ई कितने हैं, दो। स्लीप। खींचिए ना फिर। स्लीप। अभी आप खींच नहीं रहे। स्लीप। हाँ, स्लीप। आई स्लीप एट 11 PM। हाँ, ई पे थोड़ा सा जोर देंगे और खींचेंगे, स्लीप। ये जैसे कि ये था ना टीथ, हाँ टीथ। स्लीप। स्लीप। हाँ, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा खींचते हैं, क्योंकि जाहिर बात है दो ई लिखे हुए हैं, इसीलिए तो लिखे हुए हैं कि खींचना है। ठीक है, एक बार और मुझे शुरू से एक बार पढ़ के बताएं। I wake up at 7 a.m. I brush my teeth. I take a shower. आई टेक अ, I take a shower. Shower. हाँ वैसे तो शावर ही होता है, बट इसको आप शार बोल सकते हैं। Shower. हाँ, Okay. चाहे तो इसको हिंदी में इस तरह से लिख लें कि आपको पता लग जाए क्या बोलते हैं। शार, Shower. शाह में आगे मात्रा रहा। ठीक है, सही हाँ। I eat breakfast. आई I eat breakfast. इट तो ये होता है IT। Eat breakfast. इट मैं कह रहा हूँ ना, इट तो इसको बोलते हैं, हाँ। इसको तो इट नहीं बोलते। Eat. नहीं, इसमें खींचेंगे, Eat. ईट। I eat जैसे कि मैंने breakfast. बताया ना, इट तो ये होता है ना, तो ये इट कैसे होता है, ये तो ईट होगा, एक खाता हूँ, खींचेंगे, ईट, है ना। I eat breakfast. राइट। I eat breakfast. I go to college. I study in the evening. गुड। I sleep at 11 PM.
राइट, आई स्लीप एट 11 PM। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं इनका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इनका आप यूज कर सकते हैं या इसके अराउंड कुछ ना कुछ अपनी बात बोल सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है ज़रूरी तो नहीं है आपको यही शेड्यूल हो, बट ये एक एग्जाम्पल है, आप यू कैन यूज इट। ठीक है, परफेक्ट। सो अब एक काम करें, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस लिखते जाएं और उनके नीचे एक एक लाइन की जगह छोड़ते जाएं, क्योंकि उनमें वहाँ आपको आंसर्स भी फिल करने हैं। वो होगा आपका एक्चुअल शेड्यूल जो आप यूज करोगे या बोलोगे। You can, yeah, you can just divide it like this. So write the question, what time do you wake up? Right, एक लाइन बीच में जगह छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you do after that? Next question, what do you eat for breakfast? What do you eat? What do you eat What do you eat for breakfast? for breakfast? When do you study? Question mark. What do you do at night? What do you do at night? Right. ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो आपका सुबह का भी आ गया, और सुबह सुबह उठने के बाद आप क्या करते हो और उसके बाद क्या करते हो वो भी आ गया। फिर ब्रेकफास्ट की बात आ गई, उसके बाद ये आ गया आप पढ़ाई वगैरह करते हो, और फिर नाइट की बात भी आ गई। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें अपना लंच इंक्लूड कर सकते हो, इसमें आप फॉर एग्जांपल शाम के टाइम अगर कहीं टहलने जाते हो वो इंक्लूड कर सकते हो, है ना, ऐसी छोटी छोटी बातें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये आपका शेड्यूल होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स, यू कैन टेक दिस पेन एंड राइट द आंसर्स हियर। सो द क्वेश्चन इज व्हाट टाइम डू यू वेक अप? I wake up at 7 a.m. गुड, राइट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट? उसके बाद क्या करते हैं आप? I brush my teeth. आई ब्रश माई, Teeth. यस, राइट इट डाउन। ओके, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? मतलब ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? राइट, करेक्ट। चपाती एंड सैलेड एंड सब्जी। सब्जी को इंग्लिश में कैसे? वेजिटेबल्स। हाँ, वेजिटेबल्स बोल सकते हैं। आई आई ईट आई ईट इन ब्रेकफास्ट चपाती एंड वेजिटेबल्स एंड सैलेड। ओके, तो आप इन ब्रेकफास्ट लास्ट में बोल देना, आई ईट, फिर जो भी खाते हो वो, फिर लास्ट में इन ब्रेकफास्ट। आई ईट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू स्टडी? आई स्टडी इन द इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू, व्हाट डू यू डू एट नाइट? या, व्हाट डू यू डू एट नाइट? ऑल्दो आई नो कि अभी आपका शेड्यूल खराब है, बट क्योंकि सामने वाले को बताना, एक ऐसी बात बतानी जो उसको ऐसे ना लगे कि यार अच्छा ये क्या लगेगा शेड्यूल है, उसको। तो यू कैन जस्ट से दैट आई ईट माई डिनर एंड गो टू स्लीप। आई
eat my dinner. and go to sleep. I eat my dinner and go to sleep. ठीक है, तो अब ये तो हो गया क्वेश्चंस इन आंसर्स फॉर्म में। अब आपको ऑफ कोर्स जब किसी को बताना होगा तो आपको ये ऐसे क्वेश्चंस इन आंसर फॉर्म में तो बताओगे नहीं, ठीक है, वो तो बस सिंपल ये बोल के छोड़ देगा आपको कि टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, एंड देन आपको खुद को ही रिकॉइल करना है कि रिवाइंड में आपको जाना है कि मुझे क्या क्या याद किया था या तो फिर मुझे क्या क्या बताना है उसको। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इन चीज़ों को एज अ पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है, कि जिससे ऐसा लगेगा हाँ भाई एक कंटिन्यूअस वे में बोल रहा है सामने वाला, ठीक है। अच्छा, उसमें उसमें उनमें डिफरेंस क्या रहेगा, हम एक चीज़ का यूज़ करेंगे जो आज के ऑल दो टॉपिक्स में तो नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि एक अच्छा पैराग्राफ बन जाए। कनेक्टर्स एक चीज़ होती है। Connector. कनेक्टर्स वो वर्ड्स होते हैं जो आप इन दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि लेट से आप एक पैराग्राफ बोल रहे हैं तो ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा आप बार बार आई बोले जाओगे कि आई वेक अप एट ना, आई ब्रश माई टीथ, आई ईट, ये वो, तो अजीब सा लगेगा ना। पैराग्राफ में इस तरह से लिखा नहीं जाता, है ना। लगातार, मतलब आप कहना चाह रहे हैं लगातार लिखते जाना है, लगातार बोलते जाना है आपको, बोलते है जाना ना। है। तो और लगातार बोलते जब जाते हैं तो आई करके बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है ना। तो वो मैं किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद। जैसे ऐसे आई वेक अप एट 7 a.m. एंड ब्रश माई एंड देन ब्रश माई टीथ हाँ। एंड देन ईट वेजिटेबल्स एंड चपाती हम्म एंड आई स्टडी इन द इवनिंग। ऐसे ही बोलते जाना है, ऐसे आई नहीं यूज करना। जी जी जी, इस तरह से बोलते जाना है, ठीक है। सो आप पैराग्राफ नेक्स्ट पेज में लिखना चाहो या चाहो तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर जगह है। अगर और किसी चीज़ के लिए छोड़ रखा है तो अलग बात है। ओके, सो वी कैन स्टार्ट लाइक दिस। आई वेक अप एट 7 a.m. ये सिंपल ऐसे रहेगा। 7 a.m. and then एंड ब्रश माई टीथ। teeth. आफ्टर दैट नेक्स्ट After पॉइंट क्या था, that, आई ईट माई ब्रेकफास्ट। इसमें ये इतना ज़रूरी नहीं है स्पेसिफाई करना कि वेजिटेबल्स या कुछ भी। आफ्टर दैट आई ईट माई ब्रेकफास्ट। I eat my breakfast. This one. उसके बाद क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या था, स्टडी का था ना, बट वो तो आप इवनिंग में करते हो ना। हाँ. तो इसमें आप कुछ भी कह सकते हो कि Then I go to college. हाँ, आई ईट माई ब्रेकफास्ट एंड गो टू कॉलेज। ठीक है, इतनी बात हो गई। फिर आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इन द इवनिंग आई स्टडी। Evening, I study. I study in the evening. हाँ, तो वो ऐसा So हो in गया the कि इन द evening I इवनिंग आई study. स्टडी एंड And I गो टू बेड आफ्टर हैविंग माई डिनर। go to bed after having my dinner. सिंपल सी बात हो गई ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो ये बातें हैं उन्हीं को हल्का सा इधर उधर कर करके हमने लिख दिया है ना। एक बार आप मुझे पूरा पढ़ के सुनाए अच्छे से। I wake up at 7 a.m. and brush my teeth. After that, I eat my breakfast and go to college. In the evening, I study and go to bed after having my dinner. ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, सॉरी एक बार और शुरू से बताएं मुझे। I wake up at 7 a.m. and brush my teeth. After that, आप लास्ट टाइम आपने सही से बोला था, ये फिर से बोलिए। teeth. हम्म After that, I eat my breakfast and go to college. हम्म। In the evening, I study and go to bed after having my dinner.
हम्म। एक तो जो दैट होता है जी। उसको आप डैट बोलते हैं, डा, मतलब कि दा से शुरू हो रहा है और आप उसको डा से द शुरू कर रहे हैं। दैट दैट, दैट हाँ दा से दैट शुरू हो रहा है ना, तो उसको दैट बोलना दैट बोलना है, है, डैट नहीं, डैट दैट। नहीं बोलना है। हम्म, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये COLLEGE को क्या बोलेंगे? कॉलेज, क्या? कॉलेज, कॉ, लेज, लेज नहीं बोलेंगे ना। लेज, सिर्फ लेज। जब जी लिखा हुआ है तो जी की आवाज भी आना चाहिए, कॉलेज, जेड थोड़ी जेड है। नहीं, कॉलेज, हाँ जी है ना। कॉलेज, हाँ जा। हाँ, जेड की आवाज आ रही थी अभी, तो जी की, जा की आवाज आनी है, कॉलेज। ये ऐसा वर्ड है जो बहुत बार आपको वहां पर यूज होगा क्योंकि आप कॉलेज में ही जा रहे हैं, है ना। कॉलेज, 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 इस तरह से आप एक बार मुझे 3 4 बार बोल के बताइए। कॉलेज, 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 कॉलेज। ठीक है, कॉलेज होगा, है ना यार, ये बात याद रखना है आपको। बाकी चीज़ें आपने ठीक बोली हैं। अब इसको, ये आपको प्रैक्टिस करना है घर जाकर, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ है और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़रूर। ओके, सो ओके, 7 तो नहीं बजे, चलो अभी थोड़ा सा टाइम। ऑल राइट, so let's say I'm your roommate in the college. I'm your roommate, like, okay, and I'll just ask you a few questions because अभी नए नए roommates बने हैं तो अभी हमें ज़्यादा एक दूसरे के बारे में जानते नहीं। So I'll just ask you a few questions, formal या informal है कि ये formally ये roommate है, ठीक है, and accordingly you will answer me, okay. So yes, Kamran, what time do you wake up? I wake up at 7 a.m. Okay, and do you eat breakfast? Yes, I do breakfast. यस आई डू, बस इतना सही है। और या तो फिर, हाँ बस यस, यस आई डू ही ठीक है, यस आई डू, ठीक है। व्हेन डू यू स्टडी? I study in the evening. ओके, डू यू प्ले गेम्स? Yes, I do games. यस, Yes, I do. हाँ, इसमें आपको जैसे जितना आपने बोला है तो डू के बाद प्ले भी लगाइए। यस आई डू प्ले गेम्स, ऐसे Yes, बोलते I हैं, do play games. है ना। ओके, ऑल राइट, सो दैट्स परफेक्ट। ओके, I'll ask you a few more questions. What did you used to do when you were in India? Uh, I I was prepare my NEET exam. Okay, 1 minute. I see. And how was your schedule like? I mean, what did you used to do in the evening? Uh, I study in the evening. All right. So, did you also get some time to play? Yes, I play in the morning. Okay, that's nice. And what did you like to have in your breakfast? I like vegetables and salad and chapatis. So that's something very common in India. No, it's not common in India.
Oh, so what does people usually eat in breakfast in India? Um, if you go to south, um, you have to see idli and dosa. Some people eat idli and dosa in breakfast. Oh. And whenever you come to north side, Hmm? you will see people are mostly eat like jalebi, sweets. Oh, I've heard about jalebi. It's really a very nice thing. An old friend um, brought some jalebi from India one day, so I just became an instant fan of it. That's good. ऑलराइट, सो अब मैं कुछ फीडबैक्स देता हूँ आपको। आपने पीपल्स यूज़ किया फिर से? People बोला सर। बस बोला इसीलिए मैंने लिखा है। हो सकता है कभी सर, कभी होता माय है फ्लो में मिस्टेक, बोलते माय बोलते मिस्टेक। हाँ निकल जाता है। बट वही चीज़ फीड कर देनी है माइंड में कि पीपल ही होता है, पीपल्स वर्ड ही नहीं है, ये बात सोच के चलना है ना। आपने बोला आई वॉज प्रिपेयर माई नीट एग्जाम्स। मैंने जब पूछा कि इंडिया में आप क्या करते थे, आपने बोला आई वॉज प्रिपेयर माई नीट एग्जाम्स। क्या ये सेंटेंस ठीक है? आई वॉज प्रिपेयर्ड होगा ना, तैयारी करता था। देखिए, एक सेंटेंस में दो पास्ट टेंस वाली चीज़ नहीं आ सकती। मतलब जब आपने वॉज बोल दिया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं करता था। जो भी मैं बताने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं करता था ये, इसलिए आपने वॉज बोला है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको एक कंटिन्यूअस बात बतानी है कि किया करता था, ऐसा तो नहीं बोलना क्या ये मैंने किया था। आपको ये बोला ना इंडिया में मैं किया करता था। करता था वो तो ना, एक क्या कंटिन्यूअस चीज़ हो गई। और करता। प्रिपेयर का कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग होता है। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग किसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे? माय नीट एग्जाम। है ना? तो इस वर्ड का मतलब पता है क्या निकल के आ रहा है? आई वॉज प्रिपेयरिंग माई नीट एग्जाम का मतलब ये निकल के आ रहा है कि मैं अपने नीट एग्जाम को तैयार कर रहा था। तो गलत हो रहा है। है ना? आपको बोल रहे हैं मैं अपने नीट एग्जाम की तैयारी करता था, तो यहाँ पर लगेगा फॉर। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माय नीट एग्जाम। हाँ, फॉर आ गया तो इसका मतलब ये के बन गया कि लिए, इसके लिए तैयारी कर रहा था। के और लिए। जब फॉर नहीं था, इसका मतलब ये था कि इसको ही तैयार कर रहे थे आप। है ना? आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट एग्जाम। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माय नीट एग्जाम। ठीक है, ये चाहें तो आप सेंटेंस लिख दीजिए, क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन के आ रहा है हमारे पास कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट एग्जाम। क्योंकि आप ऑफ कोर्स प्रिपेयर कर ही रहे थे यहाँ पे, और हो सकता है वंस इन अ वाइल आपको किसी ना किसी को बताना पड़ेगा, हो सकता है कोई पूछे। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर। माई नीट एग्जाम्स। अब ज़रूरी तो नहीं है वहाँ आप इंडियंस ही आपके दोस्त बने, पता नहीं कोई बाहर का बने। हो सकता है वो भी बाहर का ऐसी जगह से हो जो यूएस यूके ऐसी जगह से ना हो, जिस उसको खुद को भी ढंग से इंग्लिश ना आती हो, टूटी फूटी आती हो। है ना? तो बात तो आप लोगों को इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी ना शुरू शुरू में। ओके। आपने कुछ दो सेंटेंसेस ऐसे बोले कि आई स्टडी इन द इवनिंग बोला एक तो, एक आपने बोला आई प्ले इन द मॉर्निंग। ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, बट बट टाइमिंग गलत है। हाँ, बट जो आप बात बताना चाह रहे हो उस पे ये सूट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब निकल के आता है कि मैं शाम को पढ़ाई करता हूँ, इसका मतलब निकल के आता है कि मैं दिन में खेलता हूँ। आपको बताना था कि मैं शाम को पढ़ाई करा करता था, मैं दिन में खेला करता था। है ना? मतलब क्या आपको पास्ट में बताना है ना? मैं आपसे जब भी क्वेश्चन पूछ रहा था पास्ट में पूछ रहा था, पास में पूछा था व्हाट हम डिड क्या यू कर यूज रहे टू डू, थे, इंडिया में क्या कर और रहे थे। जवाब मुझे मिला प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो आपको इस तरह से बोलना है आई, दोनों चीज़ों में आई यूज टू। आई यूज टू स्टडी इन द इवनिंग। अब ये पूरा आप नॉर्मली यूज कर सकते हो, स्टडी इन द इवनिंग। यहाँ पर भी आई यूज टू प्ले इन द मॉर्निंग, ये भी ऐसे के ऐसे यूज कर लो। ठीक है, इसका मतलब यही निकल के आता है किया करता था। ठीक है,
और यूज टू पे आप अंडरलाइन कर लो ताकि आपको यूज टू पे कि आपको पता रहे कि अच्छा ये स्पेसिफिक चीज़ है जिसकी वजह से सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो गया। ओके, परफेक्ट। ठीक है, अब एक काम करते हैं क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया, सो लेट्स क्विकली बी डन विद मगरिब एंड देन हम आकर करीब 15 मिनट्स और कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? ओके, बैक फ्रॉम द ब्रेक। ऑलराइट, सो ठीक है, हमारा ये हो गया था। ओके, अब यस और नो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था रिसेंटली कि यस और नो क्वेश्चंस जो होते हैं, मैं आपसे कुछ यस और नो क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके आंसर आप यस आई डू या तो नो आई डोंट, Don't. इस तरह से आप दे सकते हैं। और आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा और एडिशन कर सकते हैं, थोड़ा सा चाहें तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं बात को, है ना? फॉर एग्जांपल वैसे ही जैसे अभी हो रहा था, रूममेट्स बात कर रहे हैं, नए नए रूममेट्स हैं, तो दूसरा रूममेट थोड़ा सा क्यूरियस है, ऐसे ही कुछ पूछ रहा है कि ये करते थे वो करते थे, तो सिंपल बातचीत चल रही है, ठीक है? तो वही बातचीत को थोड़ा सा कंटिन्यू रखते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसको आप अगर करते थे तो यस आई डू करके बोल दो, और ज़्यादातर में ट्राई करना कि नो नो आई डोंट वाला बोलो। करता हूँ तब यस आई डू कहूँगा, करते थे तो आई यूज टू यूज करूंगा। नहीं इसमें, अच्छा हाँ, ये अभी का, ये जो क्वेश्चन है ये अभी के हैं। हाँ, हाँ, प्रेजेंट तो के। अगर मैंने पास का पूछा तो आप आई अकॉर्डिंगली यूज टू आई यूज यूज टू डू, नो आई डिडंट यूज टू डू इट, इस तरह से। और अगर जैसे मैंने अभी का पूछा, वो तो क्वेश्चन से पता लग जाएगा, तो आप जब का बोल देना, ठीक ओके। है? ओके, परफेक्ट। सो या कामरान, डू यू वेक अप अर्ली? यस आई डू। ओह नाइस, एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप? 7 a.m. I wake up at 7 a.m. Oh great, that's nice. Early to bed, early to rise, so do you also follow early to bed or only early to rise? Early to sleep. Early to sleep, you do not follow it? I followed early to only sleep early, but not wake up. Only? Only sleep early. Okay. Only Hmm? sleep early, but Okay. not wake up early in the morning. Oh, okay, okay. Well, according to me, for a lot of people, even 7 a.m. is early morning. Yeah. So still, it's better than the people who wake up at 11 a.m. because they maybe don't have to do anything to do. But yeah. So and also, do you drink tea in the morning? No, You don't? I don't. You do not? Oh, okay. So what do you prefer? I prefer breakfast, Like what in the breakfast? like chapatis and vegetables. Oh, that's too traditional, yeah. I mean, I like to have some burgers, pizzas, and any fast food would do for me, I think. No, my father always restrict for these types of foods. Oh, that's a good thing, man. That's a very good thing. And I Where, think that's where the reason that you look fit. Otherwise, you would have been chubby. Yeah. So that's a good thing. Parents are really responsible for a lot of things in our lives, and whatever is happening in our life right now, a lot of it depends on our parents also. So there are some people whose parents do not even care. They regularly keep giving them fast food, just like mine. I like to eat fast food, but not actually. I'm just being in the. So yeah, so I yeah, that's a good thing. Yeah, not having fast food and the parents restricting you and teaching you what to eat and what not to eat. It's a very good parenting. Yeah. Great. So, since you seem fit and healthy, maybe do you also go for a walk?
Now I do not go. I don't Why? because I am at fourth floor. So Oh, so just coming down is a it's walk. like work. Yeah. Same But goes with me. I am also on the fourth floor and we don't have a lift at home. And I come down at least 4 or 5 times a day, at least. So yeah, it's a great thing I think because it helps you to keep healthy. That's why even after having so much junk food, I'm not that fat. So yeah, that's a good thing. But yeah, I mean, it's okay if you do not go for a walk, but I remember you told me once that you like to play cricket. So I think that is something that helps you to stay in shape, yeah? I used to play cricket at home, not here. Oh, okay. So what is it Here, that's helping you to be fit or to stay in shape? basically here, like 5 times namaz. That's it. Right, right. So just the stairs are helping you. Yeah, Stairs are here. right. I've seen in some modern gyms, they have a special machine that is made only of stairs. The stairs keeps on rolling and rolling, and the person keeps on climbing. I mean, the person have a lift at home. I mean, it's so foolish. They comes down from the lift from their home, use their car to go to the gym, and then walk on a treadmill, and then use the stepping machine for the stairs. अजीब जमाना आ गया. बिल्डिंग में लिफ्ट है बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ. That's again a very good thing. That's again because I understand that now you do not really get to be active so much. You do not play games. You do not go for walk. So whatever is available, at least you can utilize it. So it's a very good thing. Okay, perfect. And do you watch TV at night? टेल मी अगेन. Do you watch TV at night? नो. You do not? मतलब मैं चाय सर पीता ही नहीं मैं. Continue in English. Uh, It's a I you are still in the conversation. I do not continue. I do not always drink coffee or tea. Oh, I was saying, do you watch TV at night? TV at night. No, no, no. No TV, no TV at all. Um, my father, my father also restrict TVs and So strict parenting. but we use mobile phones. Yeah, that's right. At that time, I was a small. Uh, as of now, my sister did not have too much restriction like Like you. myself, mine. Right, right, right. Okay, yeah, That because was in the village, and like you know, what is the culture and what is the situation in Bihar. yes, right, How right. much students get addicted alcohols and That's right, bad that's right. things. That's right. We belongs to we belongs to Sivan. That Hmm. you you have heard Sahabuddin name. Do you Yes, know right. Sahabuddin? I do. At that time, too much corruptions and too much criminals in Sivans. Hmm. So my father always my father always restrict us. Hmm. Don't go there. Don't Right, do right. this. In such a situation, it becomes mandatory for parents to act like this, because if they do not act right on the right time, and there's a very big chance that they might lose their children. Yeah. So, Too many my friends are mm, uh, do like addiction of oh, alcohols and drugs abuse. that's so bad. Your own friends? Yes, That's too sad. That's okay. Yeah. And I take are they distance from Muslims them. also? I take distance from them when I know he and she are using bad things and bad Mm-hmm. habits. Then Well, that's a good thing to avoid such people yes, and to be distant from them. That's a good thing because you are only responsible for yourself. No one else will answer for you, and no one else is responsible for your own life. So if you are aware enough about your own life, then that's a very good thing and a great thing. I mean, I'm sure you also got
chance or options to go into such field, go to those paths that your Yes. friends have chosen to go to, but you chose not to. It's a very good thing. Yeah. Okay. Perfect. So yeah, it was a nice conversation. I have अब कुछ थोड़े बहुत हैं, जैसे कि आपने क्या बोला था, आई बिलोंग्स टू। आई बिलोंग बोलना चाहिए था। जी, बिलोंग बोलना चाहिए था, क्योंकि आई जो होता है ना, सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए। हाँ, आप अपने बारे में बात कर रहे हो, नहीं सिंगल पर्सन वाली बात नहीं, जैसे कि ही हो गया, ही भी तो सिंगल पर्सन ही है, बिलोंग आएगा, हाँ, वो लेकिन एक के ही के लिए साथ यूज बिलोंग्स होगा। आ जाएगा, ही बिलोंग्स टू, ही बिलोंग्स। है ना, शी बिलोंग्स टू। लेकिन आई जब के साथ आई सिर्फ आता है, एस नहीं होगा। आई के साथ आएगा बिलोंग, ओके। दे के साथ आएगा बिलोंग, ठीक है। बिलोंग टू, है ना। वी, वी के साथ, वी वी के के साथ भी आएगा बिलोंग। बिलोंग। जी, मतलब ये हुआ कि आई दे वी के साथ आ गया बिलोंग, और ही शी इट के साथ आ गया बिलोंग्स। और ये बात सिर्फ बिलोंग पे ही एप्लीकेबल नहीं है, ये बात हर वर्ब पे एप्लीकेबल होगी, है ना। ओके। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत कॉमन, ईट, है ना। अब आप, जैसे कि मैंने इसके बारे में बताया, वही चीज आप ईट को लेकर एक बार मुझे इन सबका बताइए, आई के साथ क्या होगा, दे के साथ क्या होगा। आई ईट, हम्म। दे ईट्स, हम्म। दे जैसे ईट। कि मैंने बताया, ये सारे एक उसमें फॉल करेंगे, एक कैटेगरी में। आई दे वी। हम्म। आई ईट, दे ईट, वी ईट। वी ईट का मतलब हम हमने खाते हैं, खाया। या हम खाए, हमने खाया, या हम खाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके साथ करिए, ही शी इट के साथ। ही ईट, एस लगेगा। एस लगेगा। ही ईट्स, शी ईट्स, हम्म। इट ईट्स। आपको पता है ईट कहाँ यूज होता है? मोस्टली ये मतलब जानवरों के लिए यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। और किसी थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं, Very लिविंग good. थिंग्स के लिए, मतलब मोस्टली लिविंग के लिए नहीं, नॉन पेन लिविंग के थिंग्स, लिए यूज किए, हाँ कॉपी के लिए यूज किए, करेक्ट करेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के है लिए। ना। तो इट ईट्स का मतलब आपने, आप किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं कि इट ईट्स पेट फूड ओनली, इट ईट्स पेट ओनली, पेट पेट फूड ओनली, ओनली, है ना। ओनली, हाँ, ओनली। ओनली, ओनली। ठीक है, ओके। सो और भी, एक मिनट, हम कहाँ पर थे? हाँ, बिलोंग्स पर थे, अभी तो हम पहले ही उसमें हैं। आपने, अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, एच ई ए आर डी को? एच ई, एच ई ए आर डी, हार्ड, हम्म, हार्ड। हर्ड बोलेंगे ना। ठीक है, आपने कुछ ऐसा बोला था, हियर्ड। बोला होगा सर, फ्लो में हाँ, निकल है जाती ना, है। वो मैंने ये अलग अलग करके मतलब लिखा भी इस तरह से है, ताकि मुझे याद आ जाए कि आपने बोला क्या था। आपने बोला था हियर्ड, ना, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, हर्ड। हाँ, लिख लीजिए इसको। आपने एक बात और बोली थी, टू मैनी माई फ्रेंड्स। मतलब काउंटेबल है, इसलिए टू मेनी माई फ्रेंड्स बोला था। हाँ, तो इसमें एक चीज मिसिंग है, बस एक वर्ड मिसिंग है। देयर आर टू मेनी, ऐसे बोल सकते थे। नहीं, इसी सेंटेंस में, इसके पहले या बाद में नहीं कह रहा मैं। टू मैनी माई फ्रेंड्स में, इसके अंदर अंदर ही कहीं ना कहीं एक वर्ड लगेगा, जिससे इस सेंटेंस का मीनिंग सही निकल आएगा। चलो यही बता देता हूँ कहाँ लगेगा, मैनी के बाद लगेगा। टू मेनी फ्रेंड्स, टू मेनी मैनी और माई के बीच में लगेगा एक वर्ड, टू मैनी डैश माई फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड। हाँ, टू मैनी बेस्ट माई फ्रेंड थोड़ी होगा, मैंने क्या बोला, कहाँ लगेगा ये? बीच बीच में टू लगेगा। मैनी मैनी
डैश माई फ्रेंड्स, यहाँ क्या लगेगा? सोचिए। और मतलब वही रहेगा बात का जो आप कहना चाह रहे हैं कि मेरे बहुत सारे दोस्त। माई से पहले सर बता दीजिए, अब सोच नहीं पा रहा हूँ। ओ से स्टार्ट होता है वर्ड, ओ से स्टार्ट होगा। टू मैनी हम्म आउन। मतलब सही निकलना चाहिए ना उसका मतलब। ओ से होता है। हाँ, दो वर्ड्स का वर्ड है। टू मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, हाँ, ऑफ लगेगा। है ना। ओके। आप थोड़ा इनमें ज्यादा खो गए थे कि माई से पहले या इससे पहले। बट अगर आप एक जनरली सोचते तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे आ जाता है याद कि ऑफ लगेगा, कि टू मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स। हाँ, मैं क्योंकि ये सोच रहा था, माई हाँ में वही तो। माई से पहले क्या हाँ है, हाँ। ये सोच रहा था। हाँ तो ऑफ माई है ना। टू इसका मैनी मतलब ये ऑफ होता है माई। कि मेरे दोस्तों में से बहुत सारे, टू मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है। ओके। फिर आई टेक डिस्टेंस यहाँ फ्रॉम देम। यहाँ अवॉइड होना चाहिए हम्म। था। आई टेक डिस्टेंस की जगह अवॉइड होना चाहिए था। हाँ, अवॉइड। आई अवॉइड देम। ये आई पूरी। अवॉइड सच फ्रेंड्स। हाँ, आई अवॉइड सच फ्रेंड्स, इस तरह से होगा। ठीक है। ओके। या तो अगर आपको ये वर्ड यूज करना है डिस्टेंस वाला, तो इसकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। टेक नहीं आएगा, हम्म। तो आप ऐसे बोल दोगे कि आई स्टे अवे फ्रॉम देम। स्टे अवे या स्टे डिस्टेंट आई स्टे डिस्टेंट फ्रॉम देम। फ्रॉम देम। आई स्टे डिस्टेंट फ्रॉम देम, मैं उनसे दूर रहता हूँ। आई स्टे डिस्टेंट फ्रॉम देम। डिस्टेंट का मतलब होता है कि दूर। दूर, हाँ। डिस्टेंस का मतलब हुआ दूरी, दूरी, हाँ। और डिस्टेंट डिस्टेंट का मतलब मतलब होता है दूर। दूर, है ना। तो आई स्टे डिस्टेंट फ्रॉम देम लिख लीजिए आप। ये डिस्टेंट वर्ड लिख लीजिए, थोड़ा सा आपकी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए। माइंड में जो डिक्शनरी है उसको अपडेट करते रहना है, धीरे 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 जैसे भी नए वर्ड्स आ रहे हैं आपको हेल्प करेगा वो। ठीक है, तो आप होमवर्क लिख लेते हैं। ओके। राइट 8 to 10 sentences about your अबाउट about your routine रूटीन and एंड practice speaking them 3 times aloud. ये स्पीकिंग है। स्पीकिंग बोला था आपने। हाँ हाँ, स्पीकिंग। ठीक है ना। इतने सेंटेंसेस लिखना है कम से कम 3 बार तेज आवाज में, इनको बोलना जरूर। अच्छा, कल वाला जो मैंने कल भी मुझे याद है मैंने अलाउड का दिया था, तो आपने ये बोला था ना। अलाउड। हाँ मतलब बोला था ना आपने ये कल भी। हाँ बोला था। हाँ बोला था तभी तो याद था। हाँ हाँ, तो ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा आपकी ये भी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस किया था। लव, हम्म एक्सेट्रा, हम्म। पिज्जा, फेवरेट, बहुत बढ़िया, शाबाश। पैशन। सही है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत अच्छी चीज़ आप में ये देख रहा हूँ कि आपको, आपने ऐसे ही ज्वाइन नहीं किया, आपको लिटरली इंटरेस्ट है और आप सच में चाहते हैं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट। तो सिर्फ मेरे अलावा आपकी तरफ से बहुत अच्छा इनपुट आ रहा है, एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस। ठीक है। थैंक यू। तो आपके पास होमवर्क है, एंड अगर आपने मंडे को ज्वाइन किया होता तो जी। हमने पूरा वीक पढ़ा होता, और मेरे पास एक स्पेशल होमवर्क होता जो मैं नॉर्मली वीकेंड्स पे देता हूँ, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी होती है, तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी होमवर्क देता हूँ। बट क्योंकि आपने इतना नहीं पढ़ा, तो इसीलिए हमने इन 2 दिनों में जो भी पढ़ा है, जैसे कि एक तो ये हो गया, और ये जो कल वाला है, ये जो कल कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसी में आप थोड़ा सा और ट्राई टू इम्प्रोवाइज करिएगा। जैसे आज हमने कुछ बातें करी हैं, नॉर्मली भी कुछ बातें करी हैं, उनमें से अगर आपने कोई चीज़ कैच करी हो तो उसको भी थोड़ा इंक्लूड करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि लिखूंगा, सेल्फ प्रेजेंटेशन में से कुछ लिख लूंगा हम्म लाइंस। हम्म। मतलब ये तो होमवर्क जो दिया आपने उसको करूंगा ही। जी जी। 5 लाइन इससे लिख लूंगा, हम्म और हम्म 5 लाइन इससे रूटीन से लिख लूंगा। हम्म। 10 लाइन
ये बिल्कुल। अलग से मेरा होमवर्क है। ठीक ठीक, ये आपका अलग से होमवर्क रहेगा। और आप इसको, अच्छा एक होमवर्क और है आपका, वो लिख लीजिए। यूट्यूब तो देखते हैं आप? जी। लिखिए वॉच अ वॉच अ अ 1 hour 1 hour पॉडकास्ट पॉडकास्ट स्ट्रिक्टली इन इंग्लिश लैंग्वेज। वो तो मैं बोल रहा हूँ, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, स्ट्रिक्टली इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश स्ट्रिक्टली में ही होना चाहिए वो, ठीक है, विथ सबटाइटल्स ऑन। ऑन। ठीक है, सबटाइटल्स ऑन होना चाहिए। अगर वो आपको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा तेज बोल रहे हैं, स्पीड थोड़ा धीरे कर देना, बट आपको ये पता लगना चाहिए कि वो बोल क्या कर रहे हैं। क्योंकि पॉडकास्ट में ज़्यादातर ऐसा होता है, वो कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं होता, दो लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब आपका जो भी फेवरेट टॉपिक है उस पर आप देख लो, जैसे आपका जो भी, लेट से क्रिकेट है, पॉडकास्ट ऑन क्रिकेट लिख के सर्च कर दिया, जो भी आपको दिख रहा है हाँ भाई 1 घंटे का है, व्यूज वगैरह उसके ज़्यादा हैं तो मतलब सही होगा। और इन इंग्लिश ज़रूर लिख देना आगे, हम्म। है ना। इस तरह से सर्च करके आप देखना, अगर दो एक दो खंगाल के देखना, थोड़ा जो बेटर लगे वो देखना जरूर है, ठीक है। और सब टाइटल देखना है, और उससे सीखने की कोशिश करना है कि अच्छा इस बात को ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ना। माइंड ओपन रख के देखना है ये बात, ठीक। ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको करिए और मंडे को मिलते हैं।